السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہیرا گروپ آف کمپنیز کی طرف سے جاری کیے گئے سرکولر قرض حسنہ کے تعلق سے جب ہم مستعد ہوئے تو تمام طرح کے لائن و مردود افراد ہمارے اوپر ایف آئی آر کرنے کی شروعات کرنے لگے۔ خیر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایف آئی آر سے ڈرانے کا، دھمکانے کا، اور یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس سے پہلے ڈر گئے یا اب ڈر جائیں گے۔ جب ہم پہلے نہیں ڈرے تو اب کیا ڈریں گے؟ اور اتنا تو ہم کو بھی معلوم ہے پترکارتا لائن پر، صحافتی لائن میں ہونے کے ناطے سے، کہ آپ کا اس قدر مجرم ہونا جو کہ دھاراؤں کے تحت آتا ہو اور آپ کا گرفتاری کے زمرے میں آتا ہو، تبھی جا کر کے آپ کسی طرح سے گھبرانے کے قائل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بچوں کا کھیل ہی ہے کہ جو حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے گدھ صفت، اپنے آقاؤں کے گدھ صفت لوگ، میں ایک بار اس کا نام لے لیتا ہوں، حالانکہ اس کی شکل اور اس کے نام سے ہم لوگوں کو نفرت ہے، اس کی شکل گدھوں جیسی ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ کی لعنت اس پر برس رہی ہے، شہباز احمد خان کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس بات کی لعنت کی ہی ہے کہ سود خور ٹولہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ سود خور ٹولہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اور وہی سود خور ٹولہ ان شہباز احمد خان جیسے لوگوں کو مستعد اور متحرک کرتے ہیں۔ جب جب ہیرا گروپ آف کمپنیز کی کوئی بات بنتی ہوئی، عوامی سطح پر مقبولیت پاتی ہوئی کمپنی کو دیکھا جاتا ہے تو یہ لوگ مستعد ہو جاتے ہیں، ٹویٹ کرنے لگتے ہیں، اپنے لوگوں کو پکارنے لگتے ہیں اور پوری طرح سے متحرک ہو کر کے دفاتر کے، سرکاری دفاتر کے چکر کاٹنے لگتے ہیں۔ لیکن ہم الحمدللہ اول دن سے ان سے بغیر گھبرائے ہوئے، بغیر کسی طرح سے پیچھے ہٹے ہوئے، ان ملعونوں سودخور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف مستعد ہے۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز سود سے پاک تجارت، لاکھ لوگوں کی روزی روٹی کا بندوبست کرنے والی سود سے پاک تجارت، علمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی صاف نیتی کے ساتھ ہم لوگ اول دن سے کھڑے تھے، آگے بھی انشاءاللہ تعالی مستعد رہیں گے۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز نے جو یہ کال دیا ہے، سرکولر جاری کر کے قرض حسنہ کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کی گہرائی کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کی تمام طرح سے باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک طرف ہیرا گروپ آف کمپنیز کی تمام جائیدادوں کو اٹیچ کیا ہوا ہے، اس کو کسی طرح سے رحلت نہیں دی جا رہی ہے، کسی طرح سے سہولت نہیں دی جا رہی ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز اپنی پراپرٹیز کو فروخت کرے، لیکن دوسری طرف ایجنسیوں کو اس کو نیلام کرنے کے لیے پوری طرح سے اتھارٹی دی جا رہی ہے، اور ہیرا گروپ آف کمپنیز سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز 25 کروڑ 50 کروڑ 100 کروڑ روپے جمع کرے۔ تو خیر، ہمارے ملک میں کورٹ اور کچہریوں کا کہنا جو ہے آخری لفظ ہوتا ہے، اس پر ہیرا گروپ آف کمپنیز نے لبیک کہا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کسی بھی طرح سے، خیر کورٹ نے بھی کہا ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے کراؤڈ فنڈنگ ہی کر کے صحیح، کسی بھی طرح سے قرض کے ہی صحیح آپ لے کر کے اس کو جمع کریں۔ لہٰذا ہیرا گروپ آف کمپنیز کو اس بات کے لیے بھی روکا گیا کہ عوامی مقبولیت کہیں اس کی پنپنے نہ پائے۔ اس میں حالانکہ اشتہار کوئی جاری نہیں کیا جاتا تھا ہیرا گروپ آف کمپنیز کی طرف سے، لیکن ڈر کا یہ عالم ہے کہ کہلوایا گیا کہ اشتہارات وہ جاری کر رہے ہیں، اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا ہی نے پچھلے دنوں کہا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ چلائے کمپنی کو، اور جو جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیا جائے۔ لہٰذا یہ ملعون اور شہباز احمد خان جیسے ریپسٹ اور مجرم شبیہ، قاتل شبیہ اور غنڈہ گردی شبیہ لوگ آ کر کے ہیرا گروپ آف کمپنیز جیسے اعلی کلمت اللہ اور قرآن و حدیث کی بات کو اونچا کرنے والے لوگوں کا نام گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کیسی ملعون صفت کوشش ہے، اس کو ہم کہیں نہ سے کہیں تک پنپنے نہیں دیں گے۔ یہ میں آج پہلی بار ویڈیوز کو اس کی دکھا کر کے میں کوڈ کرتا ہوا آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آپ لوگوں کی بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان کی ملعونیت صفت جھوٹ کہاں تک
आप लोगों के समझ में आती है, और ये लोग कहां तक कोशिश कर रहे हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो भी किसी छोटी से छोटी कोशिश होती है, क्राउड फंडिंग होती है, क्राउड फंडिंग पर आज तक हिंदुस्तान में इलीगल कहीं कोई बात नहीं साबित की जा चुकी है। बड़ी से बड़ी पार्टियां, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, मदरसे, स्कूल, हर कोई क्राउड फंडिंग, यहां तक कि नेता जब इलेक्शन लड़ता है, पार्टियां जब इलेक्शन लड़ती हैं, जिनकी हुकूमतें होती हैं, जिनको हुकूमतें बनानी होती है, वो लोग भी क्राउड फंडिंग करते हैं। तो हम अपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने सरमायाकारों और अपने वेलविशर और खैर ख्वाहों के जरिए से अगर क्राउड फंडिंग कर रहा है तो कोई इलीगल काम तो नहीं है। और लोगों का बड़े पैमाने पर आना, जब एक शख्स कर्ज़े हसना में शामिल हो जाता है तो इन शैतानों को पसंद क्यों नहीं आता? इसलिए पसंद नहीं आता कि ये कर्ज़े हसना जो है वो सीधे अल्लाह तबारक व तआला और उस जो कर्ज़े हसना देने वाले का मामला है, वो सीधे कर्ज़े हसना का और अल्लाह ताला का दोनों का आपसी राब्ता हो जाता है, उसमें तीसरा कोई नहीं रह जाता, इसमें वक्त का कोई मियाद नहीं रहता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की कोशिशों से 3 महीने का जो वक्त है, इसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सुरखरू होकर के निकल करके आएगी। तो आप लोगों को जो ये क्राउड फंडिंग छोटी छोटी अमानतों से, बड़ी बड़ी अमानतों से, जो भी जिसको मैसर हो, जो भी शामिल होता है, शमूलियत करता है, उससे इंशाअल्लाह ताला हमेशा का हमेशा रब्त रखेगी। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस कंट्रीब्यूशन को भूलेगी नहीं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जंग बदर का जो वाकया था, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत प्यारी दुआ हुआ करती थी। उसको मैं बचपन से याद रखा हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला, चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर ये छोटी सी मुसलमानों की जमात अगर तबाह बर्बाद होती है तो अल्लाह तबारक व तआला बता ये कैसे फिर दोबारा इस सरजमीन पर कोई तेरा नाम लेने वाला बचेगा? कोई नहीं बचेगा। लिहाजा मैं इस वक्त उसी चीज के आधार पर कहता हूं कि अगर ये सूद से पाक तिजारत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आलाए करीमतुल्लाह के कलमे को लेकर के बुलंद करने वाली कंपनी अगर ये सुरखरू नहीं हो सकती, नहीं हो पाती है, तो फिर ये बताइए कि ये तमाम तरह के अक़वाल, ये तमाम तरह के अफ़आल, ये तमाम तरह की आयतें, अहादीस यहां की सरजमीन पर कम से कम धरी की धरी रह जाएंगी और उन सूदखोरों का बोलबाला होगा। ज्यादा बड़ी बातें नहीं कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि आप लोगों को इस बात को सीरियस लेना चाहिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की इतनी सारी जायदादें अगर अभी अटैचमेंट में है, अगर ये टारगेट पूरे नहीं हो पाते, खुदा न खास्ता, तो आप ये समझिए कि सख्ती के मराहिल आएंगे। और जब पहली बार सख्ती के मराहिल आए थे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में, तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज पर लोगों ने 10-10 मंजिला, 8-8 मंजिला इमारतें बनवा ली थी। सैयद अख्तर टोली चौकी ऐसा बिल्डर ने अपने दामादों को, अपने रिश्तेदारों को होटल असबा खुलवा देता है और वहां पर फुटबॉल ग्राउंड खुलवा देता है। तो बताइए कि इस बार अगर सख्ती के मराहिल आए तो इस बार क्या से क्या कुछ होने वाला है। शायद खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे ऐसा हो कि वो सारी की सारी सरजमीनें उसी तरह से, जमीनें, जायदादें उसी तरह से एजेंसियों के हाथ में चली जाएंगी जैसे मंसूर नामी शख्स जो आईएमए का था, जिसने हाथ खड़ा कर दिया था अपना। और आज आप बताइए कि आईएमए का नाम लेवा कोई दूसरा है क्या? कोई इस जमीन पर क्या कोई है जो मुतालबा कर रहा है? नहीं है, क्योंकि उसने हाथ खड़ा कर दिया, एजेंसियां उस पर हावी हो गई। आलमा डॉक्टर नौयरा शेख साहिबा ही का जज्बा है, जज्बे शाहीन है कि वो आज तक एजेंसियों को, तमाम दुश्मन अनासिर को उन पर मुसल्लत नहीं होने दिया है, क्योंकि वो हक पर है और लड़ता वही है जो हक पर होता है। जो हक पर नहीं होता वो भाग जाता है भाइयों। लिहाजा मैं आज पहली बार एक समझिए कि वीडियोस दिखा करके आप लोगों को मैं कुछ बातें, इसकी बातों का पहली बार और आखिरी बार जवाब देना चाहूंगा। आप लोग इस बात को खुद तक भी रखिए और लोगों तक वो पहुंचाइए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये मलऊन सिफत शख्स एमआईएम का दलाल रेपिस्ट शहबाज अहमद खान, जो ये कहता है कि लोगों को, बहुत सारे लोग भी कहते हैं, वो मासूम है शायद, लेकिन बहुत ये कहते हैं कि लोगों को अभी तक ये क्राउड फंडिंग की जा रही है, तो अभी तक क्या किया जा रहा था। ये देखिए, ये लेटेस्ट
5 तारीख से पहले के ट्रांजेक्शन्स हैं, ये 5 तारीख से पहले के ट्रांजेक्शन से मैं अभी नाम भी पढ़ करके सुनाता हूं, अमाउंट भी सुनाता हूं, और किस शहर का और किस आईबीजी का ये है सब कुछ। ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अभी तक कर क्या रही थी? ये 25 करोड़ रुपए वो इकट्ठा कर क्यों नहीं पा रही है? या तो भाइयों इन लोगों को वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पैसे दे, मजलूमों को, परेशान हालों को, लोगों को पैसे दे, या ये बड़े बड़े टारगेट पूरा करे। दो में से तो एक ही चीज हो सकता है ना। सारी लड़ाई लड़ी जा रही है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों को पैसे देने की। एक तरफ ये सिर्फ और सिर्फ चंद 1-2 दिन के ट्रांजेक्शन हैं। जब से 2021 से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहबा आई है, बगैर किसी बड़ी तिजारत के चले हुए, बगैर किसी प्रॉपर्टी को फरोख्त हुए, अपने बलबूते पर ये ट्रांजेक्शन तो सिर्फ एक चंद है, आटे में नमक के बराबर ये ट्रांजेक्शन हैं जो मैंने सोशल मीडिया से इकट्ठा किए हैं और लोगों से, उनके करीबी जराये से जो लोगों मैंने इकट्ठा किए हैं। देखिए छोटे छोटे अमाउंट्स नहीं है। एक एक शख्स को कई कई बार 100 सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो मेरे समझ लीजिए कि जानकार हैं, अलग अलग, यही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, मेरे जानकार हैं, अलग अलग शहरों के हैं, उन लोगों को भी पैसे दे। उनमें से इसमें इन 10-15 सफात में कोई उसमें से नहीं है। कई कई लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 8-8 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए लोगों को दे गए, वो इनमें नहीं है। ये वो है जो चीखो पुकार करते हैं। इनको मैंने हासिल किया है किसी जरिया से। रेशमा मजहरुल हुदा, ठीक है, 80,000 रुपए। आप में से किसी को चाहिए तो मैं इसको आपको भी दे दूंगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं। लोग पूछते हैं कि मतलब अभी तक कंपनी कर क्या रही थी, कंपनी के पास पैसे क्यों नहीं? कोई भी दुनिया की तिजारत हो तो वो अपनी तिजारतों में पैसों को लगाती है, ना कि अकाउंट्स में रखती है। अकाउंट्स में चंद लाख करोड़ ही होते हैं। आपने देखा ये मलऊन शहबाज अहमद खान हमेशा कहता रहता है कि एक का पैसा दूसरों को दिया जा रहा था। मैं कहता हूं कि शहबाज अहमद खान की अम्मा की पेट से ये सारी जायदादें जो 110 प्रॉपर्टीज अटैच की गई है, ये शहबाज अहमद खान की मतलब कहां से निकली है भाई? अगर तिजारत नहीं थी तो ये मलऊन कहता है कि एक का पैसा दूसरों को दिया जाता है। ये 110 प्रॉपर्टीज जिस पर असदुद्दीन ओवैसी और उसके हरकारे मलऊन सिफत जमीन माफियाओं की नजरें हैं, ये बगैर तिजारत के चले हुए कैसे मुमकिन हो रहा था? जब एक इंसान का पैसा दूसरे को दिया जा रहा था तो ये लाखों करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन महीनों में जो हो रहे थे, ये कहां से हो रहे थे? मलऊन गिद्ध सिफत इंसान कहता है कंपनी का कोई आधार नहीं। कंपनी का अगर आधार नहीं है तो तेरा बाप असदुद्दीन ओवैसी केस कैसे हार जाता है, जबकि वो बैरिस्टर है? इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में दिखा करके मैं कहना चाह रहा था, लेकिन बातें बड़ी हो जाएंगी, इसलिए मैं अब प्लान कैंसिल करता हूं। उसकी मलऊन सिफत की, गिद्ध सिफत शख्स की वीडियोस आप जाकर के देख लीजिएगा, कल की है। ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। ये शख्स कहता है कि कंपनी नहीं थी। एक भी जायदाद को फरोख्त करने के लिए अभी तक इजाजत नहीं दी गई है। रोड़े अटकाए जा रहे हैं, मतलब अटैच पर अटैच किए जा रहे हैं एजेंसियों की तरफ से, नोटिस पर नोटिस जारी की जा रही है, प्रेस रिलीज पर प्रेस रिलीज जारी की जा रही है। भला बताओ ये ट्रांजेक्शन कहां से हो रहे हैं? ये ट्रांजेक्शन ये वही जराए हैं, वही बुनियाद है, और वही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बाबुनियाद शख्सियत और तिजारत है, जो कि तिजारत के चले बगैर, प्रॉपर्टीज को रुके बगैर नुकसानात कम हुए हैं, नुकसानात बहुत हुए हैं, लेकिन उसको एक लफ्ज में भी कभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहबा ने ये नहीं कहा कि हम इसको कंप्लेनर या नॉन कंप्लेनर किसी भी शख्स जिसने जेल कराया उस पर भी हम उस नुकसान को नहीं थोपेंगे, कभी एक बार भी नहीं कहा। जबकि चलते हुए बिजनेस से उठाने का मतलब मालूम है? फूड एक्ट के कितने माल 3 साल तक सड़ते रह गए, उसको समुद्रों में फेंकना पड़ा। तिजारत के चलते हुए कितने ऐसे दफातर यूं ही बंद कर देने पड़े। औने पौने में सोने के जो जेवरात थे तमाम, मुंबई में अभी मुंबई का एक शख्स है, उसको देखा 23 लाख रुपए का जो है उसको जेवर दिया गया। वो ये एक आटे में नमक के बराबर है। इन ट्रांजेक्शन को दिखाने का मतलब यह है कि ये वो चावल है जो आप चेक करते हैं, कि पता करते हैं
کہ بھائی چاول پکا کہ نہیں پکا، یہ وہ چاول ہے. باقی اب بہت سارے ایسے ہزاروں اور دسیوں ہزار بیسوں ہزار لوگوں کو پیسے دیے گئے، کوئی شخص بتاتا نہیں ہے. میرے جاننے والے دل چھلنی ہو جاتا ہے جب ان سے کہتا ہوں کہ ایک آڈیو جاری کر دو کہ آپ کو 3 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے، تو کہتے ہیں ہمارے پیسے تو ہمیں ملے، کون سے بہت بڑے احسان کی. ٹھیک ہے بھائی، آپ کی مرضی، آپ اس چیز کو بتاؤ نہ بتاؤ آپ کی مرضی ہے. تو یہ رسمہ مظہر الہدا، یہ ان کا MIDC کراس روڈ، پتہ نہیں کہاں ہے یہ. اور شائستہ محمد عمران شیخ 5,50,000. ٹھیک ہے، وہ تو 80,000 تھا، یہ ہوا. اور یہ ہے کیمپ، برانچ نیم ہے کیمپ، کہاں کا ہے وہ آپ لوگ جان سکتے ہیں. اور صوفیہ عزیز خان 40,776، 43,820 یونین بینک. طاہرہ اقبال، طاہرہ آنٹی جو بہت چفٹی چلاتی رہتی ہے، طاہرہ آنٹی کو ایک بات میں کہنا چاہوں گا، وہ ہمیشہ کہا کرتی ہیں کہ میں اپنے حج کے لیے ان پیسوں کو میں نے رکھا تھا. دیکھیے مسلمان جو ایک بار خلوص نیت کر لیتا ہے تو اس کو ثواب وہیں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے طاہرہ آنٹی، طاہرہ چاچی، لیکن جب آپ کا تڑپنا پھٹکنا، اور یہ ٹرانزیکشن ابھی ان کو گیا ہے، حالانکہ وہ کمپلینر ہے. کمپلینر نان کمپلینر ہر کسی کو پیسے دینا ہے، ہیرا گروپ آف کمپنیز کو ہی دینا ہے، کوئی آسمان سے اتر کر کے دینے والا نہیں آئے گا. ہاں اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تسنیم شریف حامدی پونے کونڈوے خرد، ان کا اماؤنٹ ہے 2 لاکھ روپے، 2,50,000 روپے. یہ ہے اختر بیگم، اختری بیگم، اختر بیگم. امیر بن مبارک الجابری، میں بتا رہا ہوں یہ میرے جاننے والا شخص ہے، بہت بڑا مطلب جھوٹا آدمی ہے. میری جانکاری کے مطابق 2021 2022 اور 2024 اس کو پیسے ملے، یہ بھی 1 لاکھ روپے کا ٹرانزیکشن ہے. یہ ایسی حالت میں یہ ٹرانزیکشن کیے گئے ہیں جبکہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے سورس ایک بھی نہیں ہے، سارے منجمد کیے گئے، ایک پراپرٹی نہیں دی گئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا کر رہی تھی کمپنی ابھی تک. بھائی ایک طرف تو یا تو ان مطلب بڑے بڑے ٹرانزیکشن 25 کروڑ 50 کروڑ کو پورا کرے. لیگل کے معاملات، لوگ کہتے ہیں کپل سبل کو آپ کو دینے کے لیے پیسے ہیں، کون بھائی فری میں آ کر کے لڑ لے گا؟ کوئی بیرسٹر خود تو نہیں ہے، بیرسٹر ہو کر کے بھی اسد الدین اویسی ہار گیا تھا ہیرا گروپ آف کمپنی سے، اور اس کا ملعون گرد صفت شہباز احمد خان کہتا ہے کہ بزنس کہاں ہے، کہاں تھا، کس ایئرپورٹ پر. ملعون کسی ایئرپورٹ پر 1 سے 2 تولے 3 تولے سے زیادہ ایئرپورٹ پر سونے نہیں آیا کرتے. ٹھیک ہے. اور 33,228 روپے، یہ لیٹسٹ ٹرانزیکشن میں بتا رہا ہوں، ممبئی کا ہے. انصاری زاہدہ، سب کے اپنے اپنے معاملات ہیں، ان کو افشا نہیں کرنا چاہیے لیکن لوگ نہیں بتاتے، میں نے سوشل میڈیا سے اس کو نکالا ہے. محمد ظہیر الدین ٹولی چوکی، یونین بینک آف انڈیا. نبی محمد اوتی، بولے تو گوتی، یہ میرا روڈ سے ہیں، بینک آف انڈیا. 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے ہے. HDFC اورنگ آباد، رحمت النساء اویس خان، رحیم النساء اویس خان، اس میں بھی 1 لاکھ روپے کا ٹرانزیکشن. یہ سارے ٹرانزیکشن سے بتانے کا لیٹسٹ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں بھر پا رہی، کہاں گئے پیسے. بھائی پراپرٹیز سیزڈ ہے، سونے کے جتنے گہنے تھے یا تو لیگل معاملات میں ختم ہو گئے، لیگل معاملات کے تمام معاملات میں ختم ہو گئے، یا تو لوگوں کو دے لے کر کے بہار تک سے بنگال تک سے لوگ آئے میری آنکھوں کے سامنے لے کر کے گئے. لوگ بتانے نہیں آئیں گے، اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. یہ ملعون صفت MIM کا دلال شہباز احمد خان کہتا ہے، ریپسٹ کہتا ہے کہ کہاں تھا تجارت. یہ سارے کے سارے ٹرانزیکشن بغیر تجارت کے کوئی دے دیتا ہے؟ کہو اپنے اسد الدین اویسی کے رمضان میں جو ہے اتنے بڑے محتاج لوگ ہیں، لوگوں کے 1 سال وہ اسد الدین اویسی لوگوں کے اس کے بینک میں رکھے ہوئے، دارالسلام بینک میں. ابھی میں نے افشا کیا تھا کہ پچھلے اخباروں میں
लगभग 2500 ख्वातीन के जेवरों को नीलाम इसलिए कर दिया गया क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के बैंक में लोगों ने जेवर रखे थे और उसके सूद ब्याज कर्ज अदा नहीं कर सके। हर साल ये होता है, 2500, लगभग कई किलो सोने। तो कुल मिलाकर के मामला यह है कि जब जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी सुरखरुई की तरफ बढ़ेगी तब तब ये मलऊन सिफत लोग मुस्तैद और मुतहर्रिक हो जाएंगे, और ये लोग जो पैसे पाते हैं वो लोग कभी किसी को बताने नहीं जाएंगे। हर शख्स यही कहेगा, हर शख्स यही कहता है कि भाई किसको मिला, मेरे जानने वाले को नहीं मिला। बेशक मैं इस बात में भी कायल हूं कि आटे में नमक के बराबर ही लोगों को मिले हैं, बहुत सारे लोगों, लेकिन जिसको मिले हैं उसने अपनी या तो खानदानी अकरबाई की वजह से, या तो अपनी बुज़दिली की वजह से, या तो अपनी मलऊनियत की वजह से उसने नहीं बताया। एहतजाज पर एहतजाज, मुखालफत पर मुखालफत किए जा रहा है। मजलूमियत का साथ दीजिए। देखिए शादियों में, खुशियों में तो नाचने के लिए हिजड़े आ जाते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में कोई साथ खड़ा हो, कंधे पर किसी का हाथ हो, कमाल की बात वो होती है। लिहाजा आज मुश्किल हालात हैं, अगर यहां से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और इंशाअल्लाह ताला निकल जाएगी, क्राउड फंडिंग या समझ लीजिए कि कर्ज हसना का सिलसिला जारी है और बड़े पैमाने पर लोगों से राब्ता किया जा रहा है, अवाम हो या सरमायाकार, हर किसी से राब्ता किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला इस तूफानी कैफियत से भी निकल करके आ जाएंगे। तो किसी भी तरह से बदजनी में मत आइए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कर क्या रही थी। ये लेटेस्ट मैंने आपको तमाम ट्रांजेक्शन दिखाए हैं, लेकिन इन लोगों ने किसी को बताया नहीं कि 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख। मेरे जानने वालों ने बाय नेम, मैं अगर उनसे ताल्लुकात खराब होने के, लड़ाई होने के डर ना होता ना तो आज के आज मैं बता देता कि सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे पाए हैं और मुझसे कहे हैं उन्होंने खुद ही, और पब्लिक में लाने की बात नहीं कही कि पब्लिक में नहीं आना चाहिए, आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग किसी भी तरह से बदजनी से बाहर रहें। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहबा इन ट्रांजेक्शन को बताने नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी नीयत लोगों को देने की ही है, लोगों को देने ही की नीयत है, और वो ये लड़ाइयां इसीलिए लड़ रही हैं। अगर ये देने और लेने और कंपनी को चलाने की नीयत ना होती तो मंसूर अहमद खान की तरह से, IMA की तरह से, जो कि बेंगलोर का था, उसी की तरह से हाथ खड़ा कर दिया जाता। ये लड़ाइयां लड़ी इसीलिए जा रही है कि कंपनी सूद से पाक तिजारत चले, सूदखोर टोला एक बार फिर से रंजीदा हो, अलाय कलबतुल्लाह फले फूले, लोग बेवाए और मिस्कीन, यतीम और बहुत सारे लोग इससे फलाह पाए जैसे कि पाते थे। ये मलऊन सिफत शख्स MIM का शहबाज अहमद खान कहता है कि कोई कंपनी ने सैकड़ों करोड़, अभी पिछले दिनों का 2017-18 का जो इनकम टैक्स अदा किया गया था वो 100 करोड़ रुपए का था। बताइए कहां से आते हैं 100 करोड़ रुपए? किसी से क्राउड फंडिंग से जाते हैं, बगैर तिजारत के जाते हैं, बगैर ऑडिट के जाते हैं, CA के बगैर रिपोर्ट के जाते हैं। 100 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं हजार करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन या बिजनेस करने के बाद 100 करोड़ रुपए कहीं जाते हैं इनकम टैक्स को। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, लेकिन आपकी तकलीफ है कि आप लोग भी बरहमी का इजहार करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप लोग अगर इस कर्ज हसना में शमूलियत ना कर सके तो बेशक आप लोग दुआ कीजिए, दुआ अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत बख्शे। ऐसे लोगों को भी मुतारफ कराइए और कंपनी की मजलूमियत को बताइए कि कंपनी के पीछे लोग, दरिंदा सिफत लोग, गिद्ध सिफत लोग इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वो हक पर है। जो हक पर नहीं होता उसके लिए एजेंसियां काफी हैं, सरकार की डिपार्टमेंट काफी है, सरकारें काफी हैं, पुलिस और तमाम तरह के डिपार्टमेंट्स इस बात के लिए काफी है। किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, असदुद्दीन ओवैसी को FIR कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस और डिपार्टमेंट और ये सारे लोग, सरकारी इंतजामिया इस बात के लिए काफी है। असदुद्दीन ओवैसी को FIR करने के बाद उसके गले का छछुंदर बन जाना, इस बात की जरूरत महसूस ही नहीं होती। असदुद्दीन ओवैसी जैसा बैरिस्टर हार जाता है और ये मलऊन उसका बच्चा शहबाज अहमद खान, उसकी औलाद, नाजायज औलाद कहता है कि ये कंपनी कहीं से कहीं थी ही नहीं। मैं कहता हूं ये 110 प्रॉपर्टीज या 100 प्रॉपर्टीज या 90 प्रॉपर्टीज या ये 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो ED ने अभी अटैच किया है और उसको नीलाम करने के लिए रखा है, ये किस जगह से आई भाई? ये तमाम जो ब्लैकमेलर है, तमाम तरह के जो जमीन माफिया है, ये किस बात के लिए परेशान है? परेशान इन्हीं प्रॉपर्टीज के लिए है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने
एक तरफ तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लोगों को 25 साल तक बेनिफिट दिया, ये सारी प्रॉपर्टीज भी बनाई, आज तक लोगों को ट्रांजेक्शन दिए जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कंपनी ही नहीं थी। लिहाजा इस कंपनी को खड़ा करने का हमेशा अवाम का, सरमायाकारों का या वेल विशर्स का, मतदाताओं का, अच्छा चाहने वालों की ही जिम्मेदारी रही है। एक बार फिर से कर्ज हसना के तौर पर कंपनी ने लोगों को मदऊ किया है। इंशाअल्लाह ताला सब लोग शिरकत करें, दुआओं में, आजकल रमजान चल रहा है, दुआओं में शरीक रहिए, दुआओं में शामिल रखिए। इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किल घड़ी भी निकल जाएगी, जब वो दिन न रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।